Hello students, today we will start problem set 3.4 of chapter arithmetic progression. In that first question, on 1st Jan 2016, on 1st Jan 2016, Sanika decided to save rupees 10. Sanika decided to save rupees 10 on next day 11, on third day rupees 12, and so on. So Sanika decided to save rupees 10 on first day, that is on 1st Jan. On 2nd Jan it will be rupees 11, on 3rd Jan it will be rupees 12, and in this arrangement she was saving his money. If she decide to save like this, then on 31st December, then on 31st December 2016, she started her saving from 1st Jan and the last day is 31st December. It means the whole year of 2016. Then on 31st December 2016, what would be her total saving? What would be her total saving? Total saving. Whenever this word total, total का मतलब हमें find out करना है S, sum. Sum of how many days? From 1st Jan to 31st December. 1st Jan to 31st December, and the year is 2016. 2016 it means leap year. 2016 क्या है? Leap year. And in a leap year there are total 366 days. From 1st Jan to 31st December, the whole year of 2016. 2016 it means leap year, and leap year में total days कितने रहते हैं? 366. और हमें पूछा है टोटल सेविंग. कभी भी टोटल वर्ड आया तो टोटल वर्ड आया इट मींस हमें फाइंड करना है सम, दैट इज एस, एंड नंबर ऑफ डेज आर 366. So in this AP 10, 11, 12, in this AP A first term, that is 10, difference T2 minus T1, 11 minus 10 equal to 1. And now formula Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. S 366, n के प्लेस पे 366 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 1. डिवाइड करेंगे 2 1 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 10 2 जा 20 प्लस 365 इंटू 1. 183 in bracket, 365 into 1, 365 plus 20, 385. 183 into 385 मल्टीप्लाई करेंगे. 183, 385, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, 41, 5 1 जा 5, 9 0, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 66, 8 1 जा 8 plus 6 14, 0, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3 plus 2 5. Answer will be 5, 4 plus 1 5, 9 plus 6 15 plus 9 26, 2 4 plus 4 8 plus 2 10, 1 2 2 plus 5 7, 70,655. Therefore her total saving in the year of 2016 would be rupees 70,655.
5। ये वापस चेक कर लेंगे। 5 3 15, 8 5 40, प्लस 1 41, 5 1 5 plus 4 9, 0, 8 3 24, 2 8 8 64 plus 2 66, 6 8 1 8 plus 6 14, 3 3 9, 8 3 24, 2 3 1 3 plus 2 5, ये हो जाएगा 5 4 plus 1 5, 9 and 9 18, 18 plus 6, 18 plus 6 आएगा 24, 18 plus 6 24, आंसर 70,455। सम नंबर 3, Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested rupees 5,000. In the first year he invested rupees 5,000. In the second year rupees 7,000, and in the third year his investment is rupees 9,000. Therefore AP is 5,000, 7,000, 9,000 and so on. Now in this AP, first term, that is A, 5,000, difference T2 minus T1, 7,000 minus 5,000, difference is rupees 2,000. Find the total amount. Again, find the total amount. It means we have to find sum. Again, total. कभी भी ये total word आया तो हमें find out करना है sum, that is S, and find the total amount that he invested in 12 years. Sum of 12 years. Total amount that he invested in 12 years. So again, Sn, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, S12 equal to 12 upon 2, 2a plus n minus 1 and difference is 2,000. ये हो जाएगा 6, 5 2 10,000 plus 12 minus 1 11 and 11 2 22,000. 12 minus 1 11 and 11 2 22,000. 6 in bracket 10,000 plus 22,000, that is 32,000, and 32,000 into 6 करेंगे तो 0 0 0, 6 2 12, 6 3 18 plus 1 19. तो उसका total investment in 12 years it would be 1,92,000. Therefore his total investment in 12 years would be rupees 1,92,000. Fourth sum. There is an auditorium with 27 rows of seats. Total rows equals to 27. There are 20 seats in the first row. In the first row 20
six. In the first row, 26. 22 sits in the second row. 22 sits in the second row, and 24 sits in the third row. Therefore, AP is 20, 22, 24 and so on. Find the number of sits in the 15th row. Now, read the question carefully. Find the number of rows, find the number of sits in the 15th row. 15th row. 15th, 16th, 8th, 9th, 28th, 3rd, 4th. कभी भी ऐसे टर्म्स दिए हैं, इट मीन्स हमें फाइंड करना है टर्म. कभी भी क्वेश्चन में पूछा है 15th रो, 16th रो, 15th नंबर, 16th नंबर, 20th नंबर, 41st नंबर, तो ऐसे सब नंबर में हमें फाइंड करना है टर्म. यहाँ पे टोटल वर्ड यूज नहीं किया. देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, टोटल वर्ड नहीं है. अगर टोटल रहेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, सम. लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 15th रो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जैसे ही 15th रो आएगा, एक पर्टिकुलर रो की हम बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर रो में कितने सीट्स रहेंगे, वो पर्टिकुलर रो में कितने सीट्स रहेंगे वो फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे T15. तो पहले हमें फाइंड करना है T15 and also find how many total seats are there in the auditorium. How many total seats? How many total? Total again. Total word आ गया, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, sum. Total number of seats are there in the auditorium. तो अभी हमारे पास total number of rows कितने हैं ये देखो. Total number of rows 27. तो हम फाइंड करें यहाँ पे S27. पहले हमें फाइंड करना है 15th रो में कितने सीट्स है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स रहेंगे वो. तो हम फाइंड करेंगे S27. ये हो गया AP. AP में फर्स्ट टर्म है 20 और डिफरेंस में डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 2. Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D. T15 इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2, 20 प्लस 14 इंटू 2, 20 प्लस 28, आंसर विल बी 48. इसका मतलब 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे, 48. सेकेंड, वी हैव टू फाइंड S27. फॉर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn. 2a plus n minus 1 into d. S27 equal to 27 upon 2. 2a, a का वैल्यू क्या है 20, plus 27 minus 1, डिफरेंस इज 2. इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो वैसे ही रखो. 20 into 2 40 plus 27 minus 1 26. 26 into 2 52. 27 upon 2 into 52 plus 40 92. 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 and 2 6 जा. Therefore S27 equal to, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 27 into 46. 6 7 जा 42, 6 2 जा 18 plus 4, 6 2 जा 12, 12 plus 4 16, 0, 7 4 जा 28, 2, 4 2 जा 8 plus 2 10, 1 2 4 2. आंसर 1 2 4 2. इट मीन्स 15th रो में 48 सीट्स एंड पूरे ऑडिटोरियम में जितने नंबर ऑफ सीट्स है वो हमने फाइंड किया, दैट इज 1242. सम नंबर 5.
Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. So here the condition is given, and the temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. Monday to Saturday. So first I will write, since the temperature is in AP, so let the temperature of Monday to Saturday be, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ डेज के लिए और उनके टेम्परेचर्स के लिए हम यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अज्यूम करेंगे. लाइक ये है मंडे. मंडे को मैंने अज्यूम किया A-2D. सेकेंड इज ट्यूसडे A-D. थर्ड इज वेडनेसडे, उसको मैंने अज्यूम किया A. इट इज थर्सडे A+D. फॉर फ्राइडे A+2D. and last Saturday for this consecutive term is A+3D. तो सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन इन प्रॉब्लम सेट 3.4, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को यहाँ पे याद रखना है. ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को बाय हार्ट कर लो. मंडे A-2D, A-D, A+D, A+2D, A+3D. पहले यहाँ पे -2D है डिफरेंस, उसके बाद -D, मतलब एक कम हो गया डिफरेंस, उसके बाद डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे A है. फिर A+D मतलब इसका ऑपोजिट, ये माइनस का प्लस, और फिर ये -2D का +2D, एंड लास्ट इज A+3D. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday. Monday and Saturday. ये temperatures का sum was 5 degrees Celsius more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday. So here I will write from first condition. From first condition, the sum it means addition, the sum of temperatures of Monday and Saturday, it means A-2D plus A+3D. ये हो गया मंडे का टेम्परेचर और ये सैटरडे का टेम्परेचर. was मतलब इक्वल टू आएगा, was 5 डिग्री सेल्सियस मोर. 5 डिग्री सेल्सियस मोर मतलब 5 प्लस कर देंगे हम, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. ट्यूसडे एंड सैटरडे ये दोनों टेम्परेचर का सम A-D प्लस A+3D. ये हो गया सैटरडे और ये हो गया ट्यूसडे. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of Tuesday and Saturday. अभी ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A plus A 2A minus 2D plus 3D plus D plus 3 minus 2 plus 1 बचेगा यहाँ पे equal to 5. A plus A 2A minus D plus 3D minus D plus 3D plus 2D. 2A कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2D यहाँ पे आएगा तो -2D plus D equal to 5, -2 plus 1 that is -D equal to 5, therefore D equal to -5. हमें D का वैल्यू मिल गया. सेकेंड कंडीशन है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे
if temperature of Wednesday was minus 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे इट मीन्स ए, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन A equals to minus 30, A that is temperature of Wednesday is minus 30 degree. तो हमारे पास अभी A and D दोनों का वैल्यू है, the value of A and D, so we can put this values in all the temperatures of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले Monday, therefore temperature of Monday equal to A minus 2D. A का वैल्यू है माइनस 30 माइनस 2, D का वैल्यू है माइनस 5, माइनस 30 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 2 ज़ा 10, आंसर आएगा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे दैट इज A माइनस D. A का वैल्यू है माइनस 30 माइनस D का वैल्यू है माइनस 5, सो माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज माइनस 25 डिग्री सेल्सियस. थर्ड इज वेडनेसडे. वेडनेसडे का तो टेम्परेचर A है और A का वैल्यू हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज थर्सडे. थर्सडे का है टेम्परेचर A प्लस D दैट इज माइनस 30 प्लस D का वैल्यू माइनस 5 दैट इज माइनस 35 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज फ्राइडे. A प्लस 2D दैट इज माइनस 30 प्लस 2 इंटू माइनस 5, माइनस 30 माइनस 10 दैट इज माइनस 40 डिग्री सेल्सियस. एंड लास्ट सैटरडे इक्वल टू A प्लस 3D माइनस 30 प्लस 3 इंटू माइनस 5, minus 30 minus 15 that is minus 45 degree Celsius. Sixth sum. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the first row there is one tree, in the second row there are two trees, and in the third row there are three trees, and so on. So therefore AP is very simple. First row में one tree है, second में two trees and third में three trees. तो हमारा AP क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 and 3. Find the total number of trees in the 25 rows. Find the total number of trees in the 25 rows. Again total it means sum. Total it means sum. Total number of trees in the 25 rows, that is S25. हमें क्या फाइंड करना है? S25. अभी ये है P1 2 3, हमें फाइंड आउट करना है S25. It means we have to write the formula of Sn, n upon 2 2a plus n minus 1 into d. S25 equal to 25 upon 2 2a मतलब 1 plus n that is 25 minus 1 and difference, ये AP में difference क्या है? 1. डिवाइड नहीं होगा वो ऐसे ही रखेंगे. 25 upon 2 2 plus 24 into 1 25 upon 2 into 24 plus 2 26, मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू, पहले डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटू 13, 25 इंटू 13. Therefore S25 equal to 25 into 13
13 5s are 65, 6, 13 2s are 26 plus 6, 32. Total number of trees are 325. In final statement, you have to write the total number of plants, or we can say total number of trees are to be planted in 25 rows is 325. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installments. In 12 monthly installments. तो यहाँ पे total amount that he has to pay equal to 8,000 plus 1,360, that is 9,360. टोटल उसने बोरो कितना किया है? 8,000 बोरो किया है और वो अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 1,360. हम कोई भी अमाउंट कहीं से भी बोरो करते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो टोटल अमाउंट उसने 8,000 लिया है प्लस 1,360 इंटरेस्ट भी पे करना है. तो टोटल अमाउंट रीपेएबल, कितना अमाउंट उसको वापस देना पड़ेगा? तो जो उसने बोरो किया है वो तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट. 8,000 प्लस 1,360 दैट इज 9,360. इतना अमाउंट उसको वापस देना है. और ये जो अमाउंट है वो अमाउंट 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है. और वो इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं? 12 इंस्टॉलमेंट्स. तो ये जितने इंस्टॉलमेंट्स है 12 इंस्टॉलमेंट्स, ये 12 इंस्टॉलमेंट्स का सम कितना हो जाएगा? 9,360. अगेन फॉर एग्जांपल, हमारा जो क्लासेस का फीस है वो क्लासेस का फीस आपको पे करना है टोटल 10 मंथ्स में. टोटल फीस है 25,000 और ये 25,000 पे करना है इन 10 मंथ्स. तो 10 मंथ्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये जो 10 मंथ्स में तुम लोग ने 25,000 पे किया टोटल फीस, वो टोटल फीस 10 मंथ्स का जो पीरियड है उसमें ही पे किया है. इसका मतलब अगर मैं ये 10 मंथ्स में जो फीस मेरे पास आया उसका मैं टोटल करूंगा, टोटल दैट इज सम, एंड टोटल ऑफ 10 मंथ्स दैट इज S10 मेरा कितना हो जाएगा? 25,000. तो सेम यहाँ पे ये जो अमाउंट पे करना है 9,360 टोटल अमाउंट, वो पे करना है 12 इंस्टॉलमेंट्स में. तो 12 इंस्टॉलमेंट्स का जो सम होगा, जो टोटल होगा 12 इंस्टॉलमेंट्स का, वो कितना होगा? 9,360. जो उसको अमाउंट पे करना है वही अमाउंट दैट इज S12. Each installment being less than the preceding one. Each installment being less than the preceding one by rupees 40. Therefore difference equals to -40. अभी इसका मतलब क्या है? देखो, each installment being less than the preceding one by rupees 40. फॉर एग्जाम्पल, पहला जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो है ₹200. हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ₹200. देन
यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40 का मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट वो पहले वाले से ₹40 कम रहेगा, लेस देन द प्रीसीडिंग वन, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले के इंस्टॉलमेंट से ₹40 क्या रहेगा, लेस। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड हो जाएगा 160, ₹40 कम, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट इससे ₹40 कम हो जाएगा, दैट इज 120, फोर्थ इंस्टॉलमेंट इससे ₹40 कम होगा, दैट इज 80। तो फॉर एग्जांपल यही जो हमारा एपी है 200, 160, 120, 80, यही एपी में हम डिफरेंस देखेंगे तो T2 माइनस T1, 160 माइनस 200, 160 माइनस 200 डिफरेंस हो जाएगा -40। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है हमें यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि हर इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस रहेगा -40। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ए, फर्स्ट टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है, 12th, लास्ट इंस्टॉलमेंट है 12th, तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे T12, लास्ट इंस्टॉलमेंट है 12th, तो फाइंड करेंगे T12, S12 फाइंड करने का क्वेश्चन आता ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी S12 दे दिया है, तो हम S तो सम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें फाइंड क्या करना है T। और वैसे भी एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछा है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट 12th इंस्टॉलमेंट, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा T। फॉर्मूला जो हमें पहले दिया है S12 वो हम यूज करेंगे, दैट इज Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 नंबर के प्लेस पे क्या आएगा 12, 2a a फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो हमारे पास नहीं है, ब्रैकेट 12 माइनस 1 एंड डिफरेंस है -40, S12 का वैल्यू दे दिया है 9360 इक्वल टू 12 अपॉन 2 हो जाएगा 6, 2a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू -40, 9360 इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 2a प्लस माइनस 11 4 जा 440, 9360 डिवाइड बाय 6, ये 6 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 वहां पे जाएगा तो डिवाइड, इक्वल टू 2a माइनस 440, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 0 माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस इक्वल टू 2a, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2000, 2a में से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, देयरफॉर a इक्वल टू 1000, हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 1000 रुपीज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल गया a, दैट इज फर्स्ट टर्म। और अभी हमें फाइंड करना है T12, और T12 के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T12 इक्वल टू a का वैल्यू हमें मिल गया 1000 प्लस n मतलब 12 माइनस 1 एंड डिफरेंस है -40, 1000 प्लस माइनस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 440, 1000 में से 440 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 560, therefore लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज T12 वो रहेगा 560 रुपीज।